Students, hope you are doing well. Today we will start chapter 12 electricity. This chapter is from physics. Many children are afraid of physics. But don't worry, I will try to overcome your fear. First in English, then in Hindi. So let us start the first topic, electricity. What is electricity? The flow of electric charges is called electricity. Second topic is electric charge. When a glass rod is rubbed with a piece of a silk cloth, the rod acquires the ability to attract small pieces of paper. This attraction is due to the electric charge. The basis of all electric phenomena is the electric charge. Charge of electron equals to 1 by 6.25 into 10 to the power 18 coulomb is equals to 1.6 multiplied by 10 to the power 19 coulomb, and coulomb is denoted by capital C. Next topic, types of electric charge. There are two types of electric charge, positive charge and negative charge. Positive electric charge or positive charge. The electric charge acquired by a glass rod rubbed with silk is called positive electric charge. In the term of chemistry, glass plus silk cloth equals to positive electric charge. Next is negative electric charge or negative charge. The charge produced on an ebonite rod when it is rubbed with the woolen cloth is called negative charge. In the term of chemistry, ebonite plus woolen cloth equals to negative electric charge. Look at this. Here, for positive charge, we need silk cloth. For negative charge, we need woolen cloth. Okay. Now, properties of charge. First, like charges repel each other. Second, unlike charges attract each other. Third, charge is conserved. That is, charges are neither be created nor destroyed. Fourth point, charge is quantized, or it is not affected, and there is small formula for charge Q equals to NE, where small q or capital Q is the symbol used for charge, while N is a positive or negative integers and E is the electronic charge. Unit of charges. SI unit is coulomb and is represented by capital C. Coulomb is defined as ampere second. Next topic, principle of conservation of electric charge. The total charge of an isolator system always remain constant. Electric charge can neither be created nor destroyed. Next, electric field. The electric field of a charged body is the region around it within which the influence of the charge can be experienced. That is, within which it can attract or repel other electric charge. I repeat, the electric field of a charged body is the region around it within which the influence of the charge can be experienced. That is, within which it can attract or repel other electric charge. The electric field is measured in terms of electric field intensity and it is denoted by capital E. Next topic is electric current. Flow of charge constitutes an electric current. If a charge Q passes through a fixed point of a conductor in time t, then the magnitude I of the electric current flowing through the conductor is Q by T. And total formula is I equals to Q upon T. And we can write by word current equals to charge upon time. SI unit of electric current is ampere. And ampere is denoted by capital A. And 1 ampere equals to 1 coulomb by 1 second.
Or we can say 1 ampere equals to 1 coulomb per second. Next point is electric current is a scalar quantity. It means no direction. Scalar means no direction. Next point is the direction of flow of electron is opposite to the direction of the conventional current. Very important point. So learn it. I repeat this point. The direction of flow of electrons is opposite to the direction of the conventional current. Okay. Now next point. Direction of electric current is taken to be the direction of flow of the positive charge. Look at this. This is the direction of current and these are the positive charge. So direction of the electric current is taken to be the direction of flow of positive charge. Next topic is electric potential. The work done in bringing a unit positive charge. The work done in bringing a unit positive charge from infinity to the surface of the charged body is known as electric potential. Underline this line, infinity, from infinity to the surface of the charged body. Okay. Now look at this. This one, this figure. The work done. This is the positive charge, plus Q, small q, and this is the plus capital Q. The work done bringing a unit positive charge from infinity to the surface of the charged body is known as electric potential. A person will have to do some work to push the charge Q. A person will have to do some work to push the charge plus Q against the force of repulsion exerted by the capital plus Q. So we can write potential equals to work done upon charge carry, and by symbol we can write V equals to W upon Q. Next point of this. A positively charged body has a positive potential and the negatively charged body has a negative potential. Right. Now units of potential, joule per coulomb, or we can write joule upon coulomb, and this is known as volt. Now next topic is volt, definition of volt, and it is very important for 1 mark. Volt. If 1 joule of work is done in bringing a positive charge of 1 coulomb, from infinity to a certain point, then the potential at that point is 1 volt. Potential at that point is 1 volt. That point is 1 volt. Okay. Next topic is potential difference. What is potential difference? The amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other is known as potential difference. Look at this. The amount of work done in moving a unit positive charge from one point, from one point to other is known as potential difference. The potential difference between the points A, this is the point A, this point is denoted by A and this point denoted by B. The potential difference between the point A and B is potential difference. A and B is VA minus VB. Okay, VA minus VB. If the person brings a charge plus Q from infinity to the point B, work WB is said to be the work done by the person. Okay. Next, therefore, the potential at the point B is VB potential. So we can write V and B for B point. VB equals to WB upon Q. This is the first equation. Next, if the person brings the plus charge to the point A, first to the point B and second to the point A, this point. Okay. He or she does an amount of work WA. Thus,
Potential at A is given by the equation VA equals to WA by Q. Now relate both. Potential B equals to WB upon Q. Potential A equals to WA upon Q. These are the two equations. Next, from both this equation and this equation, from 1 and 2, we can find potential difference. So we can write potential difference equals to VA minus VB equals to WA minus WB upon Q. This is third equation. Okay. Now we can multiply Q into this one, VA minus VB. So we can write VA minus VB multiplied by Q equals to WA minus WB. Or we can write V for VA minus VB, and we can write W for WA minus WB. This is the fourth equation. So in word, work done equals to Q multiplied by V. Work done equals to Q multiplied by V. And potential difference equals to what? Potential difference equals to what? Work done divided by Q. Now, there are some points related to the potential difference. First point is, the SI unit of potential difference is also volt. Second point is, potential difference between any 2 points across a conductor is measured by using voltmeter. Third point is, voltmeter is always connected in parallel. Look at this, parallel, and learn it. Parallel to the point across which the potential difference is to be measured. Fourth point is, electrons tend to move from a point of lower potential to a point of higher potential. And fifth point is, a positive charge tends to move from a region of higher potential to the one of a lower potential. Okay, now I am explaining all the points in Hindi except definition. Okay, definition is very easy, so let it be. इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं? जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ में रब करते हैं, यानी उसमें रगड़ते हैं, तो एक चार्ज क्रिएट होता है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ वैल्यू है 1/6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 18 कूलम, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस. एंड कूलम को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको सिल्क क्लॉथ की जरूरत होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए हमको वूलन क्लॉथ की जरूरत होती है. पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको ग्लास रॉड की जरूरत होती है एंड नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग को इवेनाइट रॉड की जरूरत होती है. यही दोनों में डिफरेंस है. यहाँ फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं. पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्लास रॉड लेते हैं और उसको सिल्क क्लॉथ में रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. नेगेटिव चार्ज के लिए हम इवेनाइट रॉड लेते हैं और वूलन क्लॉथ से उसको रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. इन दोनों लाइन को, जो पूरा सेंटेंस है, इसको केमिस्ट्री के टर्म मैंने यहाँ समझाया, ये लिखा है, ये याद करने में बहुत इजी हो जाता है. जैसे लिखा है ग्लास रॉड, मैंने लिखा है सिर्फ ग्लास ही, इट्स ओके. ग्लास प्लस सिल्क क्लॉथ इक्वल्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम एज इवेनाइट प्लस वूलन क्लॉथ इक्वल्स टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में. ये भी बहुत सिंपल इंग्लिश है तो इसको छोड़ देते हैं. हम यहाँ फोर्थ पॉइंट में आते हैं. चार्ज इज क्वांटाइज. क्या कर रहा है कि चार्ज पर किसी का अफेक्ट नहीं होता है. और चार्ज के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है Q इक्वल्स टू NE. ओके, यहाँ पर Q या तो स्मॉल q हो या फिर कैपिटल Q हो, उसको चार्ज के लिए सिंबलाइज किया जाता है, उसे चार्ज को सिंबलाइज किया जाता है, सॉरी. जबकि n जो है, n एक नंबर है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा. ठीक है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए किया जाता है यूज. आगे आते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है. तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है. ओके, और इसको C से डिनोट किया जाता है. और इसको क्या कहते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है, कूलम इज डिफाइंड एज द एम्पियर सेकेंड. एम्पियर सेकेंड में इसको डिफाइन किया जाता है.
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें कंजर्वेशन जहां भी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, कंजर्वेशन जहां भी लिखा है इसका मतलब सुरक्षित होता है एक तरह से। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा सुरक्षित होता है, ना तो ये बनता है खुद से और ना ही ये खुद से खत्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वैसा फील्ड जहां पर चार्ज जो है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे और या तो रिपेल करे, यानी उतने एरिया में जहां पर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्योंकि चार्ज रिपेल कर रहा है और चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और चूंकि चार्ज हम लोग को पता है कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इसको हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत होती है और उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कह रहा है कि जो चार्ज फ्लो करता है ना, वही चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला के फॉर्म में है। ये क्या कर रहा है, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, जो करंट है वो किसके इक्वल है? तो चार्ज और अपॉन टाइम इसके इक्वल है, चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल है। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं यहाँ, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो उसको एम्पियर कहते हैं और कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। और वर्ड में कैसे लिखते हैं उसके यूनिट्स को? तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कूलम क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट कूलम एंड टाइम का यूनिट सेकंड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1A इक्वल्स टू 1C पर सेकेंड। पर S भी लिख सकते हैं, लेकिन S में कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन करंट। कह रहा है इस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैंने बताया था, फिर से मैं समझाती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए राइट जा रहा है तो करंट लेफ्ट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता रहेगा उधर ही, उस तरफ ही, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज राइट के साइड में जा रहा है तो करंट भी राइट के साइड ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, उस समय भी मैंने बताया था, अभी फिर से मैं समझाती हूँ। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके फिगर को भी ले लेते हैं हम लोग साथ में। ये वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। इसमें बताना चाह रहा है, यहाँ पर देखिए दो चार्ज हमने लिखा है, एक कैपिटल क्यू लिखा है, एक स्मॉल क्यू लिखा है। बताना चाह रहे हैं कि दोनों सेम ही चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का जो जगह है वो फिक्स है, राइट? ये पी पॉइंट इसका फिक्स है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, ये मैं दूर से ला रही हूँ, इनफाइनाइट से ला रही हूँ। चार्ज चूंकि दोनों का सेम है, प्लस प्लस, जब हम दूर से ला रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जैसे ही हम इस बड़े चार्ज के पास में आ रहे हैं तो हमें काम करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू वाला पॉजिटिव चार्ज, कैपिटल क्यू वाला पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको रिपेल करेगा। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर, तो इसको रिपेल करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये प्लस क्यू जो है, छोटा क्यू जो है, उसको इसके पास लेके जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ओके, और वो जो काम करना पड़ेगा, चूंकि हम चार्ज को लेकर के जा रहे हैं दूसरे चार्ज के पास, इसलिए उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस काम करना, लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि काम करना। तो जितना काम कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कर रहे हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे दो पोटेंशियल की बात करेंगे, एक बड़ा पोटेंशियल, एक छोटा पोटेंशियल। चलिए आगे आते हैं, ये वही चीज को समझाया। पोटेंशियल इक्वल्स टू फॉर्मूला के टर्म में दे दिया, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज कैरी। पोटेंशियल इक्वल्स टू जो पोटेंशियल, जो काम हम कर रहे हैं वो वर्क डन, इसको यहाँ तक ले जाने के लिए जितना काम किया जा रहा है, यानी वर्क डन। ओके, किसको? तो चार्ज कैरी, इस चार्ज को ले जाने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। उसको सिम्बलाइज कैसे कर देंगे, V इक्वल्स टू W/Q। Next topic is positively charged body has a positive potential and negatively charged body has a negative potential। इसमें कोई हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। उसको सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, J/C, एंड इसको कहते हैं वोल्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक वोल्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन है। क्या कहना चाह रहा है कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब काम जो किया जा रहा है वो 1 जूल के बराबर किया जा रहा है, ठीक है। किस लिए किया जा रहा है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज था स्मॉल क्यू जो था, उसको लाने में जो चार्ज किया जा रहा है, स्मॉल क्यू का चार्ज कितना है, वैल्यू कितना है, 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम उसके यूनिट को बता रहा है। फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बहुत दूर से हम उसको ला रहे थे, कहां पर ला रहे थे, एक सर्टन पॉइंट पर, यानी कैपिटल क्यू के पास ला रहे थे। तब जो पोटेंशियल हुआ, जितना पोटेंशियल लगा या लगाया गया, उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट, और इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में। ये समझने वाले पॉइंट है। इसमें क्या करना चाह रहा है कि ये यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का डिफरेंस। अब ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ एक लाइन मैंने खींचा है जिसके इस पॉइंट को P माना है, बीच में एक पॉइंट को A माना है, उसके बाद एक पॉइंट है जिसको B माना, और ये इसको इधर से दिखा रहे हैं। ये छोटा Q है, प्लस Q है, पॉजिटिव Q है, ये बड़ा पॉजिटिव Q है। इस छोटे पॉजिटिव Q को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, ओके, ला रहे यहाँ पर लाए। फिर हम जो पॉइंट हमने दिया था A एंड B, तो पहले जब दूर से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या टच करेगा, ये B पॉइंट। तो B पॉइंट पर जब टच करेगा तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो होगा VB। फिर यहाँ से आते आते फिर और इसके नजदीक लेके जाना, अब A पॉइंट पर आया, जब A पॉइंट पर आएगा तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा VA, ओके। ये पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, जो काम कितना करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन हमको फिर भी इसके पास लेकर के आना है। तो यहाँ से यहाँ तक, जब इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते हैं तो उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जब इसके इस प्लस Q, कैपिटल Q के पास नजदीक जब हम आने लगते हैं तो हमें काम ज्यादा करना पड़ता है। तो इसका पोटेंशियल तो VA होगा, लेकिन इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, WA। इसी तरह से इसका वर्क डन हो जाएगा WB। तो कौन सा वर्क डन ज्यादा बड़ा हुआ, यहां तक लाने में हमको ज्यादा काम करना पड़ा, चाहे B पॉइंट पर लाने में, बताइए आप लोग। यस, WA जो हुआ वो ज्यादा बड़ा हुआ। तो हम यदि वर्क डन के डिफरेंस को करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, WA माइनस WB, ओके। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, VA माइनस VB। तो आइए हम लोग डेरिवेशन में आते हैं। VB, पोटेंशियल V के लिए क्या लिखेंगे, WB माइनस Q, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये माने VB इक्वल्स टू दिस वन, उसी तरह VA के लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे लिखा WB तो यहाँ लिखेंगे WA, और Q तो दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि एक ही चार्ज को ला रहे हैं, तो Q दोनों के लिए सेम लिख दिया। दो इक्वेशन हमारा बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो मैं डायग्राम में भी अभी अभी समझाई हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम VA माइनस VB लिखेंगे। उसी तरह से हम वर्क डन डिफरेंस के लिए हम ऐसा लिखेंगे, WA माइनस WB एंड डिवाइडेड बाय Q चार्ज जो हम इनफाइनाइट से ला रहे थे। अब इस Q को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस होल से आसानी से कर सकते हैं। तो इस होल से हम Q को मल्टीप्लाई कर दिए। इधर क्या आ जाएगा, वर्क डन का डिफरेंस, WA माइनस WB। देख लीजिए ऊपर से, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस डेराइव हो जाता है बड़े आराम से। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये VA माइनस VB के लिए हम सिंपली V लिख सकते हैं। इसी तरह से WA माइनस WB के लिए सिंपली W लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 4, V मल्टीप्लाइड बाय Q इक्वल्स टू W। अब W के लिए हमने वर्ड चूज कर लिया, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय V, सेम है, बस इसको पॉजिटिव वे में लिख दिया, ओके। अब इससे वर्क डन वाले फॉर्मूला से हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इस Q को इसके नीचे लेके चले गए। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q, तो बन गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, तो उसको समझाते हैं। पहला पॉइंट तो है कि ऐसा यूनिट इसका क्या है, तो वोल्ट है। दूसरा पॉइंट है, इसको मेजर करने के लिए किस इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर का। किसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। फिर क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को जो हमारा सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके पैरेलल में लगाया जाता है, ओके।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है कि ये क्या करता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लेकिन इसके रिवर्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। चलिए एक डायग्राम पीछे पहले छूट गया उसको समझा दूं, फिर आएंगे हम लोग इधर देखेंगे कि उस दोनों डायग्राम में क्या है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, जिस टॉपिक को भी जस्ट खत्म किया, ये डायग्राम छूट गया था इसलिए मैं इसको फिर से समझाने आई हूँ। यहाँ मैंने एक जार बना दिया और इस जार को बीच में पार्टीशन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें पानी भर दिया। जो पानी भरा है तो मैं क्या देख रही हूँ कि पहले वाले पार्ट में जो है वाटर का लेवल, पानी का लेवल वो ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में वाटर का लेवल कम है। तो यहाँ पर वाटर लेवल के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंस इतना है, ये ग्रीन पॉइंट देख रहे हैं, ग्रीन एरो, इतना डिफरेंस है वाटर लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हम वाटर को भूल जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज। तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मूवमेंट किधर होगा, ज्यादा वाले लेवल से होते हुए वो कम वाले लेवल की तरफ जाएगा और फिर जाकर के दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये वाला पॉइंट जो था लास्ट में, जो भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे कुछ, उसी पॉइंट को वो डिफाइन करता है। अब यहाँ भी दो छोटे छोटे डायग्राम हमने बनाए जो पॉइंट नंबर 4 और 5 के लिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पर पहले डायग्राम को समझा दे। डायग्राम में क्या है कि दो जार मैंने बनाए हैं, एक में कम इलेक्ट्रॉन्स को रखा है, एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रखा है। इसी तरह नीचे में यहाँ दो डायग्राम बनाए, एक में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को रखा है, एक में कम पॉजिटिव चार्ज को रखा है। अब ये डायरेक्शन को मैं समझा रही हूँ, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डायरेक्शन को समझा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में कि वो कम चार्ज से, कम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, कम इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा की तरफ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, ज्यादा वाले की तरफ से कम की तरफ जाता है। ओके, next topic is circuit diagram. Before starting this topic, I want to say one thing, that I have already uploaded a video explaining units, formulas and derivations. So if you need further clarification, go ahead and watch that video. Now start circuit diagram. We know that an electric circuit comprises a cell or battery, a plug key, electrical components and connective wire. For this, look this diagram. This is schematic diagram of electric circuit. This is battery, this is switch, this is ammeter and this is bulb. Now there are so many symbols for components in table 12.1. For electric cell, symbol is this. For battery, symbol is this. We know that more than one cell is known as battery. So for battery, symbol is this. For open switch, symbol is this. For closed switch, symbol is this. For wire joint, symbol is this. Wire crossing without joint, symbol is this. For electric bulb, symbol is this. A register of resistance R, symbol is this. Variable resistance, symbol is this, and this is also known as rheostat. For ammeter, symbol is this. For voltmeter, symbol is this. Now next topic is Ohm's law. For this there is one activity 12.1. Okay, set up a circuit consisting of a nichrome wire XY of length say 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 volt each. There is one term, nichrome. What is nichrome? Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron metal. This line is very important. Okay, so note this. Now start activity. First use only one cell as the source in the circuit. Note the reading in the ammeter I for the current and reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY. Okay. Next connect two cells, one cell and two cells in the circuit and note the respective reading of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. Okay. Repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells. So there are 4 activities.
For first activity, this line. For second activity, this line. For third, this line. For fourth, this line. Okay. So we have to write all the values of I and V. Here, this column and this column. For I, this column. For V, this column. Now put the value of all in this formula separately. Okay. In this activity, we will find that approximately the same value for V upon I is obtained in each case. Okay. Thus, the VI graph is a straight line. Look this straight line. This is known as VI graph. For a nichrome wire, a straight line plot shows that as the current through the wire increases, like this increases, the potential difference across the wire increases linearly. Okay, and this is known as Ohm's law. In 1827, a German scientist Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current. Okay, directly proportional to the current. And this is known as Ohm's law. Look at this. V is potential difference is directly proportional to the I. This sign is proportional sign. So potential difference is directly proportional to I. And V upon I equals to constant according to activity. So we need one symbol and taken R for constant. Now next is V equals to IR. I already taught in this separate video. Okay. Now in Hindi, this activity only activity. इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोग 4 सेल्स ले रहे हैं. ये तो सर्किट डायग्राम में आपको पहले भी समझाया. तो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें 4 सेल्स ले रहे हैं 1 2 3 4. सभी का जो वैल्यू है 1.5 वोल्ट वैल्यू है. ओके. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, वो नाइक्रोम वायर से बना हुआ है. यहाँ वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. यहाँ अमीटर है जिससे करंट को मेजर करते हैं. फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेल से काम कर रहे हैं. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस लगाया, सर्किट को कंप्लीट किया, यूं गया और सिर्फ एक बैटरी से लेकर के एक सेल से लेकर के हम लोग एक्टिविटी करेंगे. नेक्स्ट टाइम पहला एक्टिविटी कंप्लीट होगा. नेक्स्ट टाइम जब हम चलेंगे तो ऐसे जाएंगे 2 सेल को ले लेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे. ओके, दूसरा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया. फिर थर्ड एक्टिविटी के लिए हम लोग फिर से यहाँ से ऐसे जाएंगे और 3 सेल्स को ले लेंगे, कवर करेंगे. 1 2 3 सेल्स को कवर करेंगे, ऐसे फिर से लेके जाएंगे. फिर फोर्थ एक्टिविटी के लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही कवर कर देंगे, यानी चारों सेल्स को हमें क्या करना है, कवर करना है. तो चारों सेल्स को लेते हुए कवर करेंगे और सबके लिए अलग अलग रीडिंग आएगा ही. पहले एक्टिविटी के लिए अलग रीडिंग आएगा, दूसरे के लिए अलग आएगा, तीसरे के लिए अलग, चौथे के लिए अलग. तो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रीडिंग आएगा, आई का भी, करंट का भी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बी का भी. तो हर एक्टिविटी के लिए हम इस लाइन में इसके सामने सामने हॉरिजॉन्टली लिखते चले जाएंगे. ओके, और लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, V अपॉन I में पुटअप करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे. तो कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सबका ऑलमोस्ट सेम ही आता है. ठीक है, आंसर सेम आता है. इट मीन्स की कांस्टेंट होगा. अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड ये ग्राफ है जो यहाँ बनाया गया है. तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में करंट है, वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस है. और क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा ग्राफ यूं जा रहा है. ठीक है, यहाँ करंट इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना. दूसरे केस में करंट इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना. तीसरे केस में करंट इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना, लाइकवाइज. तो हम ओवरऑल क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल है. ओके, दैट्स enough for today. Thanks for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.